So elements are that substances or material which is made up of a single type of atom and that can neither be broken into nor built up from simpler substances by any physical or chemical method. That all substances are called elements. Means एलिमेंट्स ऐसे सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम या पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही किसी सिंपल मेथड से, फिजिकल या केमिकल मेथड से बना सकते हैं, उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, राइट? सो इन दैट कैटेगरी एलिमेंट इज a pure substances that contain only one kind of atom. So that is called element. So in that explanation, iron, silver, gold, platinum, copper, nickel, these all are elements because they all are made up of only one kind of atom. So on that basis, an element is made up of only one kind of atoms which are identical in all respects. Identical means एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं. मीन्स इन रिस्पेक्ट टू द साइज, इन रिस्पेक्ट टू द शेप, in respect to the mass, in respect to the composition, etc. Means किसी भी substance की जो basic properties है, size, shape, mass, composition, इन सब का एक जैसा होता है. But the atoms of different elements have differ in their composition, in their mass and in their size. इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर कोई सेम एलिमेंट है, सपोज आयरन है या कॉपर है, कहीं पर भी प्रेजेंट है, उसके सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं. कॉपर का जो एटम है वो आयरन से मैच नहीं करेगा, आयरन का जो एटम है वो सिल्वर से मैच नहीं करेगा, सिल्वर का जो मेटल है वो गोल्ड एटम है वो गोल्ड से मैच नहीं करेगा. So these are the criteria or the characteristics of any atom. So on that basis, elements are exist in all the three states of matter. जितने भी elements हैं, ये इस matter के तीनों state में available हैं, solid, liquid and gas at room temperature. Science में इस word को लिखना compulsory है. At room temperature means जो नॉर्मल आपका बेटा डेली रूटीन में टेम्परेचर है उसे रूम टेम्परेचर कहा जाता है. साइंस में नॉर्मली एटमॉस्फेयर या रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस माना गया है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. तो ऑन दिस बेसिस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मैटर की तीनों स्टेट में अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Solid elements के example which are solid at room temperature, iron, copper, silver, etc. The elements which are liquid at room temperature is mercury and bromine. That one is the only element which are liquid at room temperature. And gases, all the gases which exist in nature are gaseous state. Oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, noble gases के example में बेटा helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the noble gases. So next is, these are basically the classification of elements. The elements are classified according to their physical and chemical properties. Physical और chemical properties के base पर elements को 3 types में divide किया है, metals, non-metals and metal wise. So first is, in yesterday class we had learned about the metals, non-metals and the metal wise. So first is the metals. There are the certain properties which are different in all the three, metals, non-metals and metal wise. So what about the metals? So the first property of metals are
they are malleable. Malleable means the elements which are to be converted into thin sheets by beaten up. ऐसे एलिमेंट्स जिनको बीट करके मीन्स हैमर से, हथौड़े से पीट कर हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर लाइक शीट्स में. उन पेपर लाइक शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं, और एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टी मैलिएबल प्रॉपर्टी. अब इस मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का डेली लाइफ में यूज कहाँ है? द मैलिएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स आर यूज इन मेकिंग डिफरेंट फॉइल. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर. सिल्वर फॉइल का यूज बेटा स्वीट्स को डेकोरेट करने में. सिमिलरली सिल्वर फॉइल्स का यूज इन मेकिंग सम मेडिसिन ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू रैप द फूड. एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है बेटा मेडिसिन को रैप करने में, फूड्स को रैप करने में, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफीज, इनको रैप करने में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज होता है. इवन जो मिल्क बॉटल्स हैं, जो मिल्क की बॉटल्स या कॉफी बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो कैप्ड बाय द एल्यूमिनियम फॉइल. सिमिलरली जो हार्ड मेटल्स हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी शीट्स का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स एंड कंटेनर्स बनाने में. So the next property of metals is ductility. Ductile word का meaning है the property by which we can draw the metal into the wire. मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, एंड द मेटल्स आर कॉल्ड डक्टाइल एलिमेंट्स. डक्टिलिटी के बेस पे फॉर एग्जाम्पल gold, silver, these all are ductile. Copper also, but gold is considered as the most ductile element because by the 1 gram of gold we can draw the 2 kilometer length wire. 1 gram gold से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं. So gold is highly ductile element. Similarly, gold is also a highly malleable element because the foil of silver and gold much more thinner in comparison to your aluminum foil. The third property of metals that the metals are the good conductor of heat and electricity. Metals heat और electricity के good conductor होते हैं, as you learned in your 7th class. So the conductors are that substances which easily allow to pass the heat through their particles. That substances are called as conductors. So in all the metals, silver is the best conductor of heat and the copper is in the second place. So that copper wires are used in the circuiting or the electricity. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं या आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, उन सभी में कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम. मींस इनका अगर इंक्रीजिंग, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन सिल्वर का यूज इसलिए नहीं करते हैं इन वायरिंग ऑफ द सर्किट बिकॉज सिल्वर इज द कॉस्टलीस्ट एलिमेंट. सेकेंड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी कॉपर वायर्स की कॉइलिंग होती है, एल्यूमिनियम की यूजिंग कम की जाती है बिकॉज एल्यूमिनियम मेल्ट वेरी फास्ट. The cooking utensils, water boilers are also made up of the copper or aluminum because they are the good conductor of heat. In all the metal, which one is the poorest? In science, if there is a benefit, there is exception. साइंस में बेटा जितने भी नेचर में अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उन सभी में एक्सेप्शंस भी है. एक्सेप्शन वर्ड का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी मेटल शो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको डक्टिलिटी में या नॉर्मली हार्डनेस में बताया कि जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हैं, बट मर्करी इज ओनली दैट मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सिमिलरली all the metals are, especially silver, copper and aluminum, are the best conductor of electricity, but lead is only that metal
which is a poorest conductor of heat. लेड एक ऐसा मेटल है जो हीट का बैड कंडक्टर है, एंड मरकरी इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब आप बोलोगे कि मरकरी जब पुअर कंडक्टर है तो इसका थर्मामीटर में यूज क्यों किया जाता है? एक्चुअली बेटा मरकरी का यूज थर्मामीटर में केवल इसलिए करते हैं because mercury is liquid at room temperature, but to entrap the heat, the bulb of the thermometer is polished with silver. जो थर्मामीटर का बल्ब है उसको सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, and silver is the best conductor of heat so that it can easily catch up the heat, and by that heat mercury is to be melted down and flows inside the capillary. So that is the reason behind it. Similarly, all the metals are good conductor of electricity also. There is a difference between the heat and the electricity. Heat is provided to provide the direct heat, but the electricity is the flow of current. इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज जब फ्लो होते हैं किसी वायर में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. बट हीट इज डायरेक्ट प्रोवाइड बाय द सम फ्यूल और एनी अदर वर्किंग बॉडी. So silver is also the best conductor of electricity. Similarly, the best conductor of heat, followed by the copper, gold, aluminum, and tungsten. Tungsten is that metal which is used inside the bulb as a filament. The electric wires are usually made up of copper and aluminum because they are not only very good conductor of electricity, but they are also the cheaper in comparison to the silver and gold. सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट कम होती है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाने में किया जाता है. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस देन दैट ऑफ कॉपर. एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर के कंपैरिजन में डबल होती है. इस बेस पे द मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन एंड मरकरी, they provide or offer very high resistance to the flow of electric current, so they are the poor conductor of electricity. मरकरी और आयरन जो है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई रेजिस्टेंस पे होता है. रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है इनहिबिट करना या रोकना. so that they are the poor conductor of electricity. Next property of metals are they are lustrous. lustrous वर्ड का मतलब होता है बेटा शाइन. जितने भी मेटल्स हैं उनमें एक बेसिक शाइन होती है, इसलिए जो शाइनी मेटल्स हैं दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वेलरी. गोल्ड, सिल्वर, इनका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है क्योंकि उनकी अपनी एक लस्ट्रिक शाइन होती है. सेकेंड वन इज दे कैन नॉट इजिली टार्निश्ड इन द एटमॉस्फेयर. टार्निश वर्ड का साइंस में किया जाता है बेटा डैमेज होने, एक्सेप्ट द सिल्वर. नॉर्मल कंडीशन में बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है ये नॉर्मली ब्लैक नहीं होती है, बट द सिल्वर एंड कॉपर आर ब्लैक और ग्रीन. सिल्वर की जो ज्वेलरी है ये सिल्वर की ज्वेलरी एटमॉस्फेरिक एयर में अगर आप इसको ओपन अप रहने देते हैं तब ये ब्लैक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है. सिमिलरली कॉपर के जो बर्तन है जब एयर में ये खुले रखे होते हैं उस कंडीशन में इनके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है. सो दैट वर्ड इज टार्निश, डैमेज होना. इस बेस पे इनकी जो शाइन है वो डैमेज हो जाती है, सो दैट वी कैन क्लीन दैट सरफेस एंड शाइन इट टू बी रीपेंट. सिल्वर मेटल इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सिल्वर मेटल लाइट का रिफ्लेक्टर मीन्स लाइट को बाउंस बैक कर देता है, सो दैट दीज आर यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर. डेली लाइफ में जो ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं उनके पीछे सिल्वर की पॉलिश होती है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जितना इजीली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं योर फेस इज इजीली विजिबल इन द मिरर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल्स आर वेरी हार्ड. नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. Sodium and potassium are included in the category of soft metal. Soft metal because they can easily be cutted by the knife. सोडियम और पोटेशियम दो एक ऐसे मेटल हैं जिनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं. And the next property of metal, they have high tensile strength. Tensile strength word का meaning होता है बेटा to bear up the weight.
वेट या लोड या भार को उठाने की जो क्षमता है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। मेटल्स के जो वार्स हैं वो इजीली बहुत ज्यादा वेट को या लोड को उठा सकते हैं, इसलिए मेटेलिक वार्स का यूज क्रेन्स में किया जाता है। आप लोगों ने बच्चों क्रेन्स देखी होगी, क्रेन से बहुत हेवी लोड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है। अब क्रेन्स में जो वार यूज किए जाते हैं वो स्टील के किए जाते हैं, नॉट द आयरन। लोहे के वार का यूज नहीं करते हैं, स्टील के वार का यूज किया जाता है, क्योंकि आयरन के कंपैरिजन में स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वो आसानी से टूटते नहीं है। So that steel is also used for the construction of buildings, bridges, railway lines, girders, etc. आयरन में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा स्टील का यूज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि स्टील में रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। वेट अ मिनट बेटा, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। स्टील में आसानी से जंग नहीं लगती है, लेकिन लोहे के जितने भी वार्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनमें जंग लग जाती है, इसलिए लोहे का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल द सॉलिड्स आर all the metals are solid at room temperature except mercury. Next, most important, metals have very high melting and boiling point. These two words you have learned in first chapter. Melting means when the solid is converted into liquid, the process is melting, and the temperature at which any solid is converted into liquid, that temperature is melting point. Similarly, boiling point means the temperature at which the liquid convert into gaseous state, that state is called as boiling, and the temperature is boiling point. So all the solids have very high melting and boiling point except gallium, cesium, sodium, and potassium. These are very low melting and boiling point. Next, most important property, metals have high density except sodium and potassium. जितने भी metals हैं उनकी density बहुत ज्यादा होती है, so that they can easily sink in the water, but sodium and potassium have very low density. Metals are basically sonorous. Sonorous word का meaning होता है बेटा create a sound. मेटल्स को जब हम बीट करते हैं हैमर से तो साउंड क्रिएट होती है, सो दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। तो रिंगिंग बेल्स हैं, रिंगिंग बेल्स को बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं हैमर से या किसी भी दूसरे इक्विपमेंट से तो एक साउंड क्रिएट होती है, और इस कैटेगरी का यूज किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वार्ड्स बनाने में। वायलिन, गिटार, सितार, तानपुरा एक्सेट्रा, ये जितने भी वार्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको बनाने में मेटल वार्ड्स का यूज किया जाता है, स्पेशली स्टेनलेस स्टील और सिल्वर। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में हमारी क्या एप्लीकेशंस हैं, यूज क्या है डेली लाइफ में बेटा? ऑल द इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ मेटल्स, because some metals or the alloys. Alloy word I think you have read in 8th class. Alloys are basically the mixture of two or more than two metals in homogeneous composition. Alloys दो या दो से अधिक metals का एक homogeneous composition होता है. So the alloyed substances are also used in daily life. For example, brass, जिसको पीतल कहा जाता है. पीतल is not a metal. Pithal is an alloy which is formed by the combination of two different type of metal. So that the alloys or the metals are used in making the cooking utensils, electric fans, sewing machines, railway lines, cars, trucks, means automobile bodies, etc. So these are the application or the uses of metals in daily life. So after the end of this topic, अगर किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क, रेज योर हैंड। किसी को कोई भी अगर क्वेरी है आप अपने हैंड रेज कर दीजिए, जो भी टॉपिक मीनिंग नहीं। माल्या अग्रवाल, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम आपने कॉपर लेयर कवरिंग क्या बताई थी, उसका नाम क्या है?
क्या चीज बेटा? मैम आपने बताया था ना जो कॉपर के ऊपर लेयर चढ़ जाती है लेयर बेटा, उस प्रोसेस को टार्निशिंग कहते हैं, TARNISHED। टार्निश वर्ड का मतलब होता है डैमेज होना। बेटा सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है और कॉपर पर ग्रीनिश ब्लू कलर की कोटिंग आती है। ओके, एनी अदर क्वेरी बेटा? नो मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हर्षित अग्रवाल। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम आपने डिफरेंस बताया था आयरन और स्टील के बीच में, क्रिंकी में हमने प्रॉपर्टी बेटा। बताई थी ना हम्म। मैम, वो पूछनी थी। बेटा आयरन एक एलिमेंट है और स्टील एक अलॉय है। नहीं मैम, एक आयरन को प्रॉपर्टी बताई थी आपने। ओके रस्टिंग बताया था बेटा, रस्ट RUSTING। रस्टिंग वर्ड का मतलब होता है जंग लगना। आपने देखा होगा आपके घरों में मैम। पिलर की बॉडीज हैं या ग्रिल है, उनमें जंग लग जाता है। वर्ड सुना है बच्चे आपने? यस मैम। ओके, लेकिन बेटा क्या आपने देखा है मैम। आपके किचन में जो स्टील के बर्तन है, क्या उनमें जंग लगती है कभी? नो मैम। नो, तो दैट वन इज द प्रॉपर्टी। स्टील में जंग नहीं लगती है, इसलिए स्टील वार्स का यूज क्रेन मैम के वन वार्स। मोर बताए थे हमने, क्रेन में, क्रेन के बारे में बताई थी आपने यस बेटा, क्रेन। आयरन का यूज इसलिए नहीं करते। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होती है। टेंसाइल वर्ड का मतलब है लोड बियरिंग कैपेसिटी। भार उठाने की क्षमता ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा वेट को उठा सकता है, इसलिए उसमें स्टील वार्स का यूज किया जाता है। ओके, और कोई क्वेरी बेटा? नो। ओके, तो नेक्स्ट वन इज माधव गर्ग। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपने सोनोरोस बताया था ना? रिपीट करो बेटा। मैम सोनोरोस। सोनोरस। सोनोरस, ओके। मैम सोनोरस वर्ड का मतलब होता है बेटा साउंड को क्रिएट करना। आप एक बात बताइए बेटा, आप लोग जब घर पर रहते हैं या क्लासरूम्स में रहते हैं, तो पेन से जो टेबल है उसके जो लेग्स है उसको बीट करते हैं, या पेंसिल बॉक्स आपका अगर लोहे का है उससे एक साउंड क्रिएट होती है नहीं होती है? यस मैम होती है। ओके, दैट वर्ड इज सोनोरस। सोनोरस ओके का मैम। मतलब है क्रिएट अ साउंड। ओके, एनी अदर क्वेरी बेटा? ओके मैम। नो मैम, नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज अर्पिता श्रीवास्तव। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे डक्टाइल पूछना था। ओके बेटा, बेटा डक्टाइल वर्ड का मतलब होता है वार्स में कन्वर्ट करना। अभी तक आपको पढ़ रहे थे बेटा, मेटल्स जो है वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को हैमर से बीट करके वार्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टाइलिटी कहा जाता है। इसलिए जितने मेटल्स हैं उन्हें हम वार्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाईएस्ट डक्टाइलिटी एलिमेंट गोल्ड होता है, जिसमें 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ का वार बना सकते हैं। राइट, एनी अदर क्वेरी बेटा? ओके मैम, थैंक यू। नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज रघुराज सक्सेना। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो मैम। यस बेटा, बोलिए। मैम कुछ दिनों बाद जो टेस्ट होने वाले हैं उनमें केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आएगा? केमिस्ट्री बेटा हो जाएगा, बट आई थिंक फर्स्ट चैप्टर फुल मे बी। फर्स्ट चैप्टर फुल? Yes, beta, full first chapter of chemistry, full first chapter of the bio, and in physics, what is the chapter about? Ask your physics teacher. Okay? ओके मैम। मैम केमिस्ट्री में फिर वो फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज नहीं होगा? आपने कहा था रिवीजन होगा उसका, मतलब जैसे कि पहले बेटा। कुछ अटेंड नहीं हुआ होता। ओके बेटा, रिवीजन होगा। अगर आप एक बार रिवाइज करा देंगे तो वो हमारे आ जाएगा याद। ओके बेटा, ओके। So I think on Friday it is good for all the students. यस मैम। ओके, फ्राइडे को आपको फर्स्ट चैप्टर का बेटा रिवीजन करा देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज रिद्धि अग्रवाल। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। रिद्धि अग्रवाल। मैम मैं ये थी कि ना जो हमारा टेस्ट है वो सैटरडे को होगा क्या? यस बेटा, सैटरडे इज असाइनमेंट डे। ओके मैम, और मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी सैटरडे को कॉपी
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है रिद्धि। रिद्धि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मोहित चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस बेटा बोलिए। मैम सारे टेस्ट एक ही दिन में होंगे, सैटरडे को ही? बेटा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, जो भी टाइम टेबल डिसाइड होगा, एक दिन में होगा या 2 दिन में होंगे, आई डोंट नो। या लास्ट टाइम तो बेटा वीकली हुआ था आपका, मीन्स 1 टेस्ट इन अ डे, आफ्टर दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लास। तो फॉर्मेट जो भी होगा बेटा आपके पोर्टल पे आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, राइट? एनी ओके अदर मैम, क्वेरी बेटा? थैंक यू मैम। ओके नो मैम, नो मैम। नेक्स्ट इज मोहित, माल्या अग्रवाल अगेन। ओके बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये पूछ रही थी कि बायो और केमिस्ट्री दोनों में फर्स्ट चैप्टर आएंगे ना टेस्ट में? यस बेटा, फर्स्ट चैप्टर इन बायो और फर्स्ट इन केमिस्ट्री। फिजिक्स का बेटा आपको फिजिक्स वाले टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। या सिलेबस chemistry आपका और यूनिट टेस्ट का biology बेटा अपलोड हो जाएगा, तो सिलेबस तो बेटा अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल पे, वो यूटी का आपको आइडिया मिल जाएगा उसको। ओके ओके मैम, ओके थैंक यू बेटा, मैम। वेलकम बच्चे। नेक्स्ट हर्षित अग्रवाल, वन मोर क्वेरी। ओके अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम मुझे ये पूछना था, ये जो टेस्ट होंगे ये रिवीजन टेस्ट है ना? हेलो मैम। बेटा यूटी होगा बेटा, ये नॉट द रिवीजन। मैं हर्षित हेलो अनम्यूट मैम। योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा बोलिए। यस मैम। मैम ये सैटरडे को ये टेस्ट होंगे, वो यूटी होंगे? यस बेटा। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेरी? देयर इज वन मोर, अर्पिता श्रीवास्तव। ओके बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक और चीज पूछनी थी कि मैम ये जो यूटी जो होंगे हमारे कल, मैम सैटरडे को ही होंगे ना यूटी? तो यस बेटा, असाइनमेंट और यूटी बेटा, यूटी होंगे तो आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा, रिवीजन टेस्ट है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? मैम सिलेबस पोर्टल पे ही आएगा? हाँ बेटा, सिलेबस पोर्टल पर ही आएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बच्चे। रिद्धि अग्रवाल, यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी सैटरडे को कॉपीज चेक हो रही हैं सेकेंड यूनिट आकर, तो मैम अभी चेक मतलब चेक ना हो पाए तो अगर बाद में चेक कराएंगे तो लेट वर्क तो नहीं डलेगा ना? नहीं बेटा, लेट वर्क नहीं होगा, लेकिन आप टाइमली चेक करा लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके Right? मैम। ओके मैम। ओके बेटा, ओके बेटा। भूमि गुप्ता, यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो कट है, मैटर इन सराउंडिंग। हु सेड बेटा? बेटा किसने मैम कहा क्या? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कट है? मैम वो वाला सिलेबस आया था 30% वाला, मैम उसमें लिखा हुआ था बेटा फर्स्ट डिलीटेड चैप्टर पोर्शन है। आपका कट, बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका कट नहीं है। आपका जो चैप्टर कट है पूरे साइंस में, that one is the bio chapter, that is the last chapter of bio, that is the natural resources, and that natural resources के बेटा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उस चैप्टर के आपको प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट उसका करना होगा। प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होगी उस चैप्टर की, इंटरनल असेसमेंट है, वाइवा है, जो भी टीचर्स डिसाइड करके बताएंगे। क्वेश्चंस केवल एग्जाम में नहीं आएंगे उस चैप्टर के। मैटर इन सराउंडिंग तो कट नहीं है बेटा। आपने कौन से पोर्टल पे बेटा सिलेबस देखा है? मैम मेरे पास मैसेज तो आते नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाया था तो उसमें लिखा हुआ था मैम केमिस्ट्री के सिलेबस में। नहीं बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है बेटा। आपके 9th क्लास में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेपरेटली आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर कंबाइंड होता है साइंस का बेटा। उसमें होल साइंस में केवल बायो का लास्ट चैप्टर कट हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज,
ठीक है, वो इंटरनल असेसमेंट। ठीक है मैम। अगर आप रीचेक कर लीजिए बेटा, 100% वैलिडिटी मत रखिए। ओके, ककुल जैन, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो मैम। यस बेटा, बताइए। मैम कॉपी चेक कैसे हो रही है? में बेटा सेकेंड यूनिट आकर के आप स्कूल में सबमिट कर दीजिए, तो रिस्पेक्टेड टीचर्स आपकी कॉपी करेक्ट कर देंगे। और मैम सारे सब्जेक्ट की सबमिट करनी है? बेटा आपका जो वर्क हो जाए, रिमेनिंग जितनी भी क्वेरीज है बेटा रिगार्डिंग द कॉपी करेक्शन, यू कैन कांटेक्ट द ऑफिस। ओके ओके मैम। और मैम जैसे अभी नहीं कराएं बाद में कराएं तो वैसे कोई बात तो नहीं? नो बेटा, नो, नो लेट वर्क। ओके मैम, ओके बेटा, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट अभय बंसल, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अभय बोलिए बेटा। ओनली 5 minutes आर लेफ्ट टू एंड द क्लास। नो, एंजल गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम फर्स्ट यूनिट में सबमिट कर सकते हैं? फर्स्ट यूनिट में आई डोंट नो बेटा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ओके मैम। आप इसको स्कूल में कॉल करके बेटा कंफर्म कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके बेटा। कृति एंड सिद्धि, ओके बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हमें सैटरडे को स्कूल जाना पड़ेगा कॉपीज चेक करवाने के लिए? यस बेटा, स्कूल जाना पड़ेगा कॉपी करेक्शन के लिए। हमें टीचर्स यूनिट 2 नहीं जा मतलब पढ़ना नहीं है, हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, तो कैसे करवाएंगे फिर हम? डजंट मैटर बेटा, आप रिमेनिंग जो क्वेरीज है बेटा आप स्कूल ऑफिस से कंफर्म कर लीजिए। मैम कहाँ जाके? अपने यूनिट 1 में या फिर यूनिट 2 में? कहीं भी कंफर्म कर लीजिए बेटा, दोनों यूनिट सेम है, देयर इज नो सच डिफरेंस। यस आप मैम। कहीं भी कंफर्म कर लीजिए। ओके बेटा। मैम सारी कॉपीज चेक होंगी? फहाद अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये जो कॉपी चेक करानी है सिर्फ सैटरडे को ही करा सकते हैं? यस बेटा। और मंडे ट्यूसडे ऐसे कुछ नहीं, हर सैटरडे को ही? नो बेटा, Saturday only, because from Tuesday to Friday your online classes are there. ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट अभय बंसल, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बताइए क्या बात है अभय, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? तन्वी गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम Yes, मुझे ये बेटा। पूछना था कि मैम सैटरडे को जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे या फिर रिटर्न में टेस्ट? ऑनलाइन होंगे बेटा, ऑनलाइन। ऑनलाइन। ओके, यस बेटा, ओके ऑनलाइन। मैम, थैंक यू। ओके, नितीक्षा अग्रवाल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम ये पूछ रही थी जो स्कूल में कॉपी चेक होंगी तो उसमें हॉलीडे होमवर्क भी चेक करा सकते हैं? यस बेटा, हॉलीडे होमवर्क यू हैव नोटेड डाउन इन क्लास वर्क कॉपी बेटा, सेपरेट कॉपी बनानी नहीं थी, उसी में नोट डाउन करना था आपको। नहीं मैम, किसी की फाइल्स वगैरह भी है ना? ओके ओके, आई थिंक इन एसएसटी यू हैव प्रिपेयर फाइल। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। Okay, so I think all the queries have resolved and time is also completed. टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेरीज। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास बेटा।